اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد جہاں زیب چودھری عوام دوست پارٹی سے، اور میرے ساتھ میرے پینل کے دوست جو ہیں وہ اس وقت اس ریئل ٹاک جو پروگرام ہے اس میں آپ کے سامنے موجود ہیں. میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ جو ہیں وہ موجود ہیں احسان ناصر، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پورا پاکستان ان کو جانتا ہے، ان کی آواز بڑی دماغ آواز ہے. زیبا ناصر ایز یوزول کاف لیگ کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور بڑا دباغ بولنے والی ماشاءاللہ سے. آج کا ہمارا کور ایشو جو ہے وہ پاکستان کی ایز اٹ از پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ہے. اور آج ہم جو اس سے پہلے ڈرامیٹیکلی جو کچھ پیغامات آئے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اور جو پیٹرول پرائسز ہیں ان پہ ہم ڈسکس کریں گے. احسان صاحب کو گزارش کروں گا کہ آج پروگرام کو وہ سٹارٹ کریں اور تھوڑا سا اپنا فیڈ بیک دیں، اس کے بعد زیبا صاحبہ کی ویوز لیتے ہیں اور میں اپنے بھی ڈیفینیٹلی کچھ شامل کرتا رہوں گا. جزاک اللہ. جی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف جو کہ غریب عوام کے بارے میں بھولے جا رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں جن لوگوں کو ایک نوالا نہیں مل رہا، روٹی نہیں مل رہی، میں ان کے غم میں پاگل ہو گیا ہوں. لیکن میں وزیر اعظم سے یہ پوچھتا ہوں، اور میرا یہ حق ہے پاکستانی ہونے کے ناطے کہ میں آپ سے پوچھوں، اگر آپ اتنے ہی غریبوں کے ہمدرد ہیں تو پٹرول کیوں مہنگا کیا، بجلی کیوں مہنگی کی، ہر چیز جو کہ بازار میں کچن آئٹم میں وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ بندہ خریدنا تو دور کی بات دیکھ بھی نہیں سکتا. آٹا 9 روپے کلو مہنگا ہو گیا جی. کل یہ خبر تھی کہ 9 روپے کلو نہیں، یوٹیلٹی اسٹور پہ مہنگا کر دیا. بالکل ہاں جی. 980 روپے میں وہ چلا گیا جی. ہاں 980 روپے میں ہاں جی 20 کلو کا. دوسری طرف نا معیشت کی جنگ یہاں پہ ہمارے سابق وزیر خزانہ اور موجودہ وزیر خزانہ پہ لگی ہوئی ہے. وہ اس کو کہہ رہے ہیں یہ دھوکہ کر رہے ہیں، وہ اس کو کر رہے ہیں، اور نقصان جو عوام کو ہو رہا ہے، جیبیں جو کاٹی جا رہی ہے عوام کی کاٹی جا رہی ہے. اب جب 30 روپے پٹرول میں نے پوری لائف میں نے اتنا یکدم پٹرول مہنگا ہوتے نہیں دیکھا. اب آپ رکشے پہ بیٹھ جائیں، ٹیکسی پہ بیٹھ جائیں، گاڑی میں بیٹھ جائیں، کسی پیاز لینے والے چلے ہوئے مہنگائی ہو گئی. تو میں یہ بالکل وزیر اعظم سے یہ سوال ہے میرا، آپ نے کیا اپنے بھائی کے لیے یا ڈالر اکٹھے کرنے ہیں یا غریب عوام کی بات کرنی ہے؟ تو خدا را اب دھوکے بازی سے باز رہیں، عوام کو بار بار دھوکہ نہ دیں. اب یہ آپ کے دھوکے میں نہیں آئیں گے اور آپ کو ڈالر اکٹھے کر کے منی لانڈرنگ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ اس وقت عوام جو ہے وہ باشعور ہو چکی ہے اور یہ سمجھ چکی ہے کہ منی لانڈرنگ کیا ہوتی. پہلے تو کسی کو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اب وہ ٹکے والا اور یکے والا کے اکاؤنٹ میں نا اربوں ڈالر نہیں نکلے گے. تھوڑا سا آپ کنٹریبیوٹ کریں. میں احسان ناصر صاحب کی بات سن کے تو مجھے محسوس ہو رہا تھا یہ کن لوگوں کو تنقید کر رہے ہیں، جن لوگوں کا نہ زمین ہے جو تنقید پروف ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ مہنگائی کے ہاتھوں جو لوگ پریشان ہیں، میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. میں یہ وزیر اعظم سے پوچھتی ہوں، کیا انہوں نے یہ پٹرول کو اتنا مہنگا کیا، ان کو پتہ نہیں چلا کہ مہنگائی کا یہ طوفان آئے گا اور غریب بھی پسیں گے؟ امیروں کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ان چیزوں سے، ان کے پاس سرمایہ ہے، ان کے پاس ڈالر ہے، ان کے پاس بہت ساری حرام کی کمائی بھی ہے، لیکن یہ تو صرف غریب طبقہ پسے گا. اور وزیر اعظم صاحب کو میں کہتی ہوں ہوش کے ناخن لیں، غریبوں کی بات کریں، غریبوں کو ڈھانپنے کا کام کریں. آپ نے صرف احسان صاحب میری بات سنیں، میں صرف یہ کہتی ہوں کہ یہ پھر منی لانڈری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ غریبوں کو لوٹنے آئے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی میسج نہیں ہے، اور صرف ان کا جو مقصد ہے اور وہ یہی ہے کہ لوٹو پھٹو اور بھاگ جاؤ، اور ان کا اور کوئی منشور نہیں ہے. دیکھیں بھائی صاحب باہر ہے، یہاں سے آشیرواد ملتا ہے ان کا، تو وہاں سے آشیرواد ملتا ہے اور یہاں پہ تنقید کر کے وہ اسی کام کو کر رہے ہوتے ہیں. اور بیٹی ہے ان کی، وہ یہاں بیٹھ کے خدا ترسی کے لیے وہ بیچارے وہ جو شہید ہوا ہے ہمارا بھائی
हमारा बच्चा उसके घर में जाके बाप से बात करवाई जा रही है और हमदर्दियां लेने के लिए बैठे हैं। और हमदर्दियां लेनी है तो दुनिया में और भी बड़े लोग हैं जिनको आपकी जरूरत है। ये दिखावे मत करें, रियलिटी में गरीबों का साथ दें और आवाम के दुख दर्द में शामिल हो, उनको डिलीवर करके। कोई शक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हम चूँकि डिस्कस करते हैं बड़ा ओपनली, हम यकीनन पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहेंगे कि ये बुनियादी तौर पे ये जो महंगाई का एक तूफ़ान है अभी हुआ, या इससे पहले जितने महंगाई के तूफ़ान होते हैं या फिर बतदरीज पिछले 70 सालों में ये जो हमारी पॉलिटिकल रजीम है वो बतदरीज चीज़ों को चेंज कर देती है। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी हमें ये देखना पड़ेगा कि इस निज़ाम ने जो आज तक डिलीवर किया है वो कितना डिलीवर किया है और इस निज़ाम की ज़िम्मेदारी क्या थी और कैसे इसके स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए अवामी इस्तेसाल जो है उसको जारी और सारी रखे हुए हैं। एक बुनियादी तौर पे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, अवाम दोस्त पार्टी के पैनल से मैं चीज़ों को एनालाइज करता हूँ और एज अ चेयरमैन मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आप अवाम को ये बताऊँ कि इस निज़ाम के जो जितने परवरदा हैं या इस निज़ाम को जितने चलाने वाले हैं या जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो इस निज़ाम में तब्दीली क्यों नहीं चाहते और किस तरह से ये अवामी इस्तेसाल को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पार्लिमानी जमहूरियत के सारे स्टेक होल्डर्स या तो वो ज़रदार हैं, वो या तो वो जागीरदार हैं, या तो वो सरमायादार हैं, और ये लोग जो अवामी ज़ात पात के नाम पे पैसा लगा के बिरयानी पे और बहुत सारी चीज़ों पे ऐसी इन्फ्लुएंस करके जब ये इक़्तिदार में आते हैं और फिर पूरा निज़ाम जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ये फिर बड़े पैमाने पे IMF से, वर्ल्ड बैंक से कर्ज़े लेते हैं और फिर उन कर्ज़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, उनको इस्तेमाल करते हैं और फिर उनको उनसे अपनी जायदादें बनाते हैं। यहाँ पे एक गरीब आदमी जो है वो जो बिरयानी की प्लेट पे जो बिका हुआ है वो आवाज़ नहीं उठाता, उसके अलाइज के साथ खड़ा रहता है। बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान की आवाम को ये देखना कि ये अगर निज़ाम इसी तरह हम पे मुसलत रहा तो बहुत कलील अरसे में हम दिवालिया हो जाएंगे। वैसे हम इखलाकी तौर पे दिवालियापन का शिकार हैं और ये दिवालियापन हमारी हड्डियों में रासख होता चला जा रहा है। इससे कौम बर्बाद हो रही है। ये जो इकनॉमिकली पाकिस्तान का दिवालिया होना है ये तो पाकिस्तान के लिए बुरा साबित होगा ही, लेकिन उससे पहले जो इखलाकी दिवालियापन है या कौम के अंदर जो करप्शन को और बददियानती को और बेईमानी को जो रासख किया जा रहा है उसकी वजह से जो असरात मुरतब हो रहे हैं उससे पाकिस्तान की जो जड़ें हैं वो इंतहाई कमज़ोर हो गई हैं। इस निज़ाम को जो पार्लिमानी हमारा निज़ाम है उसको भी तब्दील होने की ज़रूरत है और यकीनन हमें अपना नए सिरे से हमें खुद को तरतीब देना पड़ेगा। जावेद साहब, इसमें मैं एक गिरा लगाना चाहता हूँ। जी जी। अब कौमी असेंबली का इजलास हो रहा है, जी कायदे बेखिलाफ है वो लोग है जो फैसलाबाद से PTI के टिकट पे है, बिल्कुल वो कायदे बेखिलाफ बन गए। बिल्कुल मुझे ये बताएं, ऐसे लोग भी जब कौमी असेंबली में इजलास कायदे बेखिलाफ होगा और उसमें ये नैब को खत्म करने की बात की गई है, बिल्कुल ऐसा, उसमें इलेक्शन पुराने तरीके कराने की जरूरत पर जोर दिया गया है और इसके लिए और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान रीढ़ की हड्डी है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको वोट देने की बात नहीं की जा रही। तो ये सारी दोगली जो रहे है ना और ऊपर से अवाम का जो है ना गम इनको खाया जा रहा है, ये सारी बातें वो हैं कि आज अभी मुझे एक इतला मिली है कि पाकिस्तान में जो 2 अरब रुपए है ना वो गरीबों में बांटे जाएंगे 2000 के हिसाब से। तो मुझे ये बताएं, ये अवाम के साथ मजाक है, ये अवामी इस्तेसाल के साथ मजाक है। और ये 2000 तो बांटे आप लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करके उसको खुद खा जाते हैं और उसमें से क्लीन लोगों पे लगा के ये समझते हैं कि हमने लोगों पे एहसान कर दिए। 2000 रुपए, अगर 2000 रुपए एक चुटकी आपको दे दी जाए और 7 रुपए बिल पड़ा दिए गए, 30 रुपए पेट्रोल पड़ा दिए, तो आपको ये 2000 देने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? बिल्कुल है। इसलिए ये जो हुकूमत है, क्योंकि ये तो है तो इम्पोर्टेड हुकूमत भी है, इसके साथ ये जो है ये मुक्का मार और छुरी मार हुकूमत है, क्योंकि इन्होंने हमेशा आवाम को लूटा है और अब अवाम इनको नहीं लुटने देंगे। और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो है ना इसमें आपको हक़ाइक़ पर मबनी बातें मिलेंगी और कोई भी इसमें
लगा लगाओ ये मिर्च मसाला नहीं होगा। हम वो बात करेंगे रियल बात है जो मौके पे हो रहा है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट की बात है, इसमें अदलिया की बात है, इसमें ब्यूरोक्रेसी की भी बात है, इसमें मीडिया की भी बात है। जो शख्स भी पाकिस्तान के लिए बुरा साबित होगा हम उसके खिलाफ डट जाएंगे और डट कर बात करेंगे। हमें अल्लाह ताला ताकत दे, हिम्मत दे कि हम अवाम की सही रहनुमाई कर सकें इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान अवाम के लिए मैसेज है, आप कुछ कहने लगी थी पहले, वो आप जरूर। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहने लगी थी कि इस वक्त पाकिस्तान में तारीख दोहराई जा रही है कि सियासत में इससे ज़्यादा गंद नहीं हो सकता। 90 की दिहाई में जो गंद पड़ा डाला गया था, ये उससे बड़ा गंद अब डाला जा रहा है। अब देखें कि जब इलेक्शन ही फेयर एंड फेयर नहीं होंगे तो शहबाज शरीफ साहब का रवैया कैसे कामयाब हो सकता है? चौधरी परवेज अली साहब ने एक मिनट असाना साहब फेक असेंबली, फेक कानून, फेक अदलिया, सब कुछ फेक है। देखिए मैं इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट करूं, पाकिस्तान की आवाम सुन रही है जी। देखिए पिछले 70 सालों में बतदरीज ये इस लेवल पे लेके आए कि आज पोलराइजेशन जो है वो अपनी इंतहाओं को छू रही है। और मुझे ये लगता है कि अगर अवामी इस्तेसाल का ये सिलसिला अगर इसी तरह जारी और सारी रहा तो यकीन करें कि अवाम इनके गिरेबन फाड़ेंगे और पाकिस्तान में इस लेवल पे एजिटेशन नज़र आएगी जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखी गई। अवाम एक इलेक्टेबल को चुनते हैं और उस पर ट्रस्ट करते हैं, जब वो इक़्तिदार में आता है तो वो अवाम के साथ धोखा करता है, और उसके बाद दूसरा वो जब चुनते हैं तो वो उसके साथ आके धोखा करता है, जब वो तीसरा चुनते हैं तो वो भी आके उनके साथ धोखा करता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे जो बड़ी आज की जो पोजीशन है वो इतनी बिटर है कि आपकी एस्टैब्लिशमेंट और आपकी अदलिया भी आज एक्सपोज हो चुकी है, वो भी अवाम को धोखा दे चुकी है। तो आप देखें कि जहाँ इदारे, जहाँ पे पार्लिमान, जहाँ पे आपके लीडर्स, हर बंदे ने अवाम को धोखा दे दिया, तो इस मुल्क का पुरसाने हाल कौन होगा? मैं समझता हूँ कि जब इंतहाओं को टच कर रही हो कोई भी फोर्स, कोई भी ताकत, चाहे वो झूठ की हो, जुल्म की हो, जब बर्बरियत की हो, जबर की हो, जब वो इंतहाओं को छू रही हो तो उसने ख़त्म होना होता है। इस शेर के साथ कि थोड़ी सी मैंने बात करनी है। जी प्लीज। अब देखो ना कि शेरी मदारी की बेटी को के खिलाफ पर्चा कट गया, उसने फौज के खिलाफ बात की है। क्या नवाज शरीफ ने फौज के खिलाफ बात नहीं की? इमरान खान ने फौज के खिलाफ बात की, सरदारी ने फौज के खिलाफ, और मरियम नवाज डेली फौज के खिलाफ बात करी, उन पे पर्चा क्यों नहीं करता? देखिए पाकिस्तान में इस वजह से निजाम जो है ना वो दुरुस्त नहीं है। जब तक निजाम दुरुस्त नहीं होगा ये कुछ नहीं हो सकता। देखिए इस निजाम के स्टेक होल्डर सारे हैं और बेनिफिशरी भी सारे हैं। जब ये सारे बेनिफिट जितनी देर तक लेते रहेंगे ये निज़ाम इस तरह से रहेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टाइम करीब है, ये निज़ाम लपेटा जाने वाला है, नई सुबह जो है तुलू होने वाली है। और आखिरी शेर जो मैं आपकी नज़र करने जा रहा हूँ कि फिर रात की चादर के किनारों को लगी आग, आसार बताते हैं सहरों के रहेगी। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।